آمنے سامنے کفر غب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور کسی شاعر نے اس کے بدلے میں کیا ہی خوب شعر لکھا تھا کہ کی محمد سے دغا تو نے، غور کریے گا، وفا نہیں، یہ شعر میں دغا ہے، کی محمد سے دغا تو نے تو ہم ٹیڑھے ہیں، کی محمد سے دغا تو نے تو ہم ٹیڑھے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا قبر میں بھی اندھیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا قبر میں بھی اندھیرے۔ یہ شعر جو ہے تو گستاخان رسول کے لیے لکھا گیا تھا، ہم تو عاشقان رسول ہیں، اور عاشقان رسول کے لیے کون سا شعر تھا جو میں نے پہلے کہا وہ والا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ عاشقان رسول کے لیے شعر ہے۔ آئیے حضرات، آج کی اس مبارک محفل میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر اپن ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا ہے، تو آقا کریم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کو بھی رب کریم نے بھیجا، ان کے علاوہ اور بھی انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت سے انبیاء رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ہر نبی ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے نئی نئی انوکھی نرالی آن بان شان کے ساتھ بھیجا۔ کسی نبی کو حسن و جمال دیا تو کسی کو جاہ و جلال، کسی کو سلطنت اور ملک و مال بخشا تو کسی کو جود و نوال، تو کسی کو علم و حکمت کے لازوال سے مالا مال کر دیا۔ لیکن نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبرہ، راحت قلب و سینہ، تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں رب کریم کو بھیجنا تھا، رب کریم نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو کسی ایک یا دو معجزے کے ساتھ نہیں، کسی ایسی ہلکی پھلکی نرالی آن بان شان کے ساتھ نہیں، بلکہ اتنی آن بان شان کے ساتھ بھیجا کہ تمام کمالات و معجزات رب کریم نے ایک ذات بابرکت میں عطا فرما دیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم ہے بے حساب کیا کہنا، کریم کا کرم ہے بے حساب کیا کہنا۔ ہاں لوگوں، وہ رب کریم کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے پاس بھیجا۔ رب کریم فرماتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا میں مفہوم آپ کو بتا دوں، رب فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنا محبوب دے کر احسان کیا ہے۔ رب نے کہیں پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ناک دیا، آنکھ دی دیکھنے کے لیے، منہ دیا بولنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے، ہے نا، اور ایسی دیگر کام کرنے کے لیے بہت سی طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن ان سب کے بارے میں رب نے نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دے کر احسان کیا، لیکن رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا تو احسان کیا، میں نے تمہیں اپنا محبوب دے کر احسان کیا ہے۔ تو یہ رب کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے پاس بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے امتی ہیں، کیونکہ اور بھی نبی کے امتی تھے، وہی بڑی شان والے تھے، ہم آقا کریم کی امتی ہیں تو ہم ان سب میں بھی زیادہ شان والے ہیں، کیونکہ رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے آقا کریم کے امتیوں، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، آیت تو کافی لمبی ہے، مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تمہارا رسول سب سے افضل ہے اس لیے تم بھی سب سے افضل ہو۔
اللہ तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा। आका करीम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं। तो जिस तरीके से तमाम नबियों के सरदार आका करीम है, इस तरीके से आका करीम की उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल वाला है। तो आका करीम बड़ी शान वाले हैं, वो इतनी शान वाले हैं कि वो सिराज मुनीर भी हैं, वो तहार यासीन भी है, यहाँ तक कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। रब फरमाता है कि लोगों मेरा महबूब रहमतुल्लिल आलमीन है। गोया कि रब फरमा रहा है कि लोगों मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मतलब मैं तमाम आलम का पालने वाला हूँ, और मेरा महबूब रहमतुल्लिल आलमीन है, मतलब तमाम आलम के लिए रहमत है। यानी रब फरमा रहा है लोगों जहाँ जहाँ मेरी रुबूबियत है वहाँ वहाँ मेरे महबूब की रहमत है। और आका करीम ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद रहमत है, और आका करीम ने सिर्फ खुद रहमत का दर्ज नहीं दिया, आका करीम ने रहमत का दर्ज लोगों को दिया। रहमत किस तरीके से की जाती है, लोगों पर किस तरीके से शफकत करनी चाहिए, रहमत करनी चाहिए, ये भी आका करीम ने बताया और खुद भी किया, और अपने चाहने वालों को रहमत का दर्ज भी दिया। आका करीम के जब आका करीम इस दुनिया में नहीं आए थे तब इस दुनिया का हाल उठा करके देखिए, लोग कितने ज्यादा मुसीबत में थे, तरह तरह से दुनिया में बीमारियां थी, तकलीफें थी, और तरह तरह से बीमारियां इस दुनिया में फैल रही थी। लेकिन जब से आका करीम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कितनी सारी बुराइयां और बीमारियां इस दुनिया से चली गई, खत्म हो गई इस दुनिया से वो बीमारियां। जब तक आका करीम नहीं आए थे ना तो इस दुनिया का हाल ही बहुत खराब था, और जब आका करीम इस दुनिया में आए तब का हाल क्या था। जब आका करीम आए ना तो गरीबों ने कहा था आसरा आ गया, यतीमों ने कहा था सहारा आ गया, बेवाओं ने कहा था मुद्दा आ गया, और बेटियां कहने लगी बचाने वाला मुस्तफा आ गया है। जब आका करीम जलवागर हुए और उनकी जलवागरी को देखा तब बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने कहा था कि सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जब वो जलवागर हुए और उनकी जलवागरी देखी तब बरेली के इमाम ने कहा था कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। और जब वो जलवागर हुए और उनकी जलवागरी को देखा तो हद कर दी मेरे इमाम ने, और जब कलम इश्क में उठा तो कलम तोड़कर इमाम ने लिखा था और दुनिया को बताया था कि वो आ रहे हैं जिनकी शान ये है कि लम्याती नजीर गफी नजरिन मिसले तो शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दुसरा जाना। और उनके जलवों का इश्क जब सीने में उतरा तब इमाम ने कहा था अर्रूह फिदा का फजिद हरबन देख शोला दिगर बरसर इश्कन मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। वो शान वाले नबी हमारे दरमियान तशरीफ लाए, इसलिए हम फख्र से कहते हैं कि हम आका करीम की उम्मती हैं। हमें तो कभी दुआएं भी नहीं करनी पड़े क्या ए रब करीम, ए खालिक कायनात, ए मालिक अर्ज़ समा, तू हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाना। लेकिन ये रब का बहुत बड़ा फजल एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो मुबारक महफिल है ये शादी खाना आबादी के सदके में इस महफिल का इंतजाम एहतमाम किया गया है। तो शादी के मतलब बहुत से बयानात आपने सुने होंगे और बहुत से लोगों के बयानात सुने होंगे। तो मैं आपके दरमियान में मतलब एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ जो हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा ज़हरा का है। इन दोनों का भी आपस में निकाह हुआ, आप लोगों को तो बखूबी मालूम है। तो हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा ज़हरा के बयान से मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि लोगों को किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई तकलीफ ना आए। अगर इंसान आक़ाए करीम की सुन्नतों पर सही तरीके से अमल करे, हजरत मौला अली के किरदार पे अमल करे, औरतें सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार पे अमल करे, तो आज जो इतनी सारी बुराइयां पैदा हो रही हैं समाज में, इतनी सारी अलग अलग अनबन पैदा हो रही है, वो सब समाज से दूर हो जाएंगी। लेकिन कब होंगी? जब लोग सुन्नते मुस्तफा पे अमल करेंगे, जब लोग किरदार मौला अली पे अमल करेंगे, जब लोग सुन्नते सैयदा फातिमा ज़हरा पे अमल करेंगे, तब जो बुराइयां वो खत्म होंगी। तो हम सभी के चाहिए कि हम जो बुजुर्गाने दीन है, जो हमारे असलाफ है, उनके किरदार पर, उनके अमाल पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आक़ा करीम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बता ही रहा था कि एक मरतबा का वाक़या हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि रात का वक्त था, मौला अली फरमाते हैं रात का वक्त था, अचानक मेरी नींद खुली, मैंने एक आवाज़ सुनी, ऐसा लगा कि कोई गिर गया है।
मौला अली फरमाते मैंने सुना कि कोई गिर गया, तो मैं जब उठ करके वापस आया ना, बाहर आकर के मैंने देखा अपने कमरे से, जब मैं बाहर आया मौला अली फरमाते मैंने देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर गिर गई हैं। क्या देखा? नबी की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर गिर गई हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं करीब आया, आ करके मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा को उठा करके बैठाया और मैंने पूछा कि ए सैयदा, ए फातिमा ज़हरा, ए नबी करीम की लख्ते जिगर, ऐसी क्या वजह है जो आप गिर गई? मुसल्ले पर आप खड़ी हुई थी, रात में नफिल नमाज पढ़ रही थी, ऐसी क्या वजह थी जो आप मुसल्ले पर गिर गई? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं ए अली, आज 3 दिन हो गए मैं ना कुछ खाया है और ना कोई ऐसी चीज मेरे शिकम तक पहुंची है जिससे मुझको ताकत मिल सके। तो ए अली जो मैं गिर गई ना, कमजोरी की वजह से गिर गई। जिससे इतनी बात हुई ना यहाँ पर ये बात हुई, उधर फजर की अजान हो गई। जब अजान हुई हजरत मौला अली घर से बाहर निकले, दिल में ख्याल आया कि यार नमाज जाकर पढ़ूं या जाकर एक खाने के लिए इंतजाम करूं ताकि नबी की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा शिकम शेर हो जाए, मतलब उनका पेट भर जाए। तो जब दिल में ख्याल आया तो मौला अली ने सोचा यार नमाज ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मौला अली ने उस वक्त खाने का इंतजाम नहीं किया, पहले नमाज पढ़ने गए। फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब घर वापस आ रहे थे फिर दिल में ख्याल आया यार अली किस मुंह को लेकर के घर जाओगे? घर में तुम्हारी बीवी भूखी है, तो किस मुंह को लेकर के तुम घर जा रहे हो कि खाली हाथ घर जा रहे हो? अगर घर जा रहे हो तो कुछ लेकर के जाओ। तो इस ख्याल ने हज़रत मौला अली के कदम रोक दिए। मौला अली रुके, फिर दिल में ख्याल आया यार ऐसा करते हैं आका करीम की बारगाह में जाते हैं। फिर दिल में ख्याल आया ए अली अगर आका करीम की बारगाह में जाओगे, ए अली जब रोजाना तुम जाया करते हो आका करीम की बारगाह में, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुमसे पूछा करते हैं, सबसे पहला सवाल आका करीम का रोजाना यही हुआ करता रहा, ए अली मेरी बेटी फातिमा कैसी है? क्या होता रहा सवाल? ए अली फातिमा कैसी है? मौला अली ने सोचा यार अगर मैं आका करीम की बारगाह में जाऊंगा, आका करीम मुझसे पूछेंगे अली फातिमा कैसी है, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत को कि उनकी बेटी किस हाल में है? फिर हज़रत अली के कदम रुक गए। हज़रत अली ने सोचा ऐसा करते हैं पहले खाने का इंतजाम करते हैं। फिर हज़रत अली शहर से बाहर निकले, दूसरे शहर में गए। सुबह से दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई। हज़रत अली खाने की तलाश में, काम की तलाश में ढूंढते रहे कि कहीं कोई काम मिल जाए ताकि पैसे का इंतजाम हो जाए, फिर मैं उससे खाना लेकर के घर जाऊं। हज़रत अली ढूंढते रहे लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, कोई काम न मिला। यहाँ तक कि हज़रत अली जंगलों में भी गए, शहर में गए, जंगल में गए, कहीं तो कोई काम मिल जाए, लेकिन मौला अली को इतना भी काम ना मिला कि खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी के लिए भी वो पैसों का इंतजाम कर सके, इतना भी उन्हें काम ना मिला। जब काम नहीं मिला ना, दोपहर का वक्त हुआ, मौला अली वापस आने लगे। मायूस होकर जब वापस आ रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिला। उस शख्स ने कहा अली किधर जा रहे हो? हज़रत अली ने कहा कि यार रोजी की तलाश में मैं घर से बाहर निकला था, कहीं कोई काम नहीं मिला, मैं वापस घर जा रहा हूँ। उस शख्स के हाथ में एक ऊंट की रस्सी थी। उस शख्स ने कहा अली ऐसा करो ये ऊंट मुझसे ले लो, ये ऊंट मुझसे ले लो। तो हज़रत अली ने कहा था यार मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं ये ऊंट तुमसे कैसे खरीद लूं? उस शख्स ने कहा था ऐसा करो अली ये ऊंट ले लो, जब तुम इस ऊंट को तुम लेकर के बेच दो, जब पैसा मिलेगा तब तुम मुझे दे देना, अभी मत तो पैसा, जब मिलेगा पैसा तब तुम मुझे दे देना। हज़रत अली ने कहा ठीक है। वहां पर हज़रत अली को उस शख्स ने ऊंट बेचा। हज़रत अली ऊंट लिए, जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े थे फिर एक शख्स मिला। उसने पूछा अली किधर जा रहे हो? हज़रत अली ने कहा ये ऊंट है, इसे बेचना है। उस शख्स ने कहा बेचोगे ऊंट? तो हज़रत अली ने कहा हाँ बेचना तो है, तभी तो लेकर के जा रहा हूँ, बेचने के लिए ये लेकर जा रहा हूँ। तो उस शख्स ने कहा ठीक है मुझे ही बेच दो। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने वो ऊंट 100 दिरहम में खरीदा था। कितने में? 100 दिरहम में खरीदा था। उस शख्स को मैंने 110 दिरहम में बेच दिया। जब 110 दिरहम में बेचा ना, तो 100 दिरहम में तो मैंने खरीदा था, तो उसकी 100 दिरहम अमारत थी, 10 दिरहम अमारत मेरी हुई क्योंकि मैंने बेचा था। तो अली फरमाते हैं फिर मैं दोपहर से उसको ढूंढता रहा, उस शख्स को दोपहर से मैं ढूंढता रहा कि यार वो शख्स मिल जाए जिससे मैंने 100 दिरहम में वो खरीदा था, क्योंकि ये 100 दिरहम की जो अमानत है तो उसी की है। और आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है, कहीं रास्ते में कुछ पड़े हुए पैसे मिल जाए तो इंसान दाएं बाएं देखता, कोई देखते नहीं रहा, उसके बाद उठाया और निकल लिया, पता भी नहीं चलता कि यार वो किसका पैसा था, गिरा है नहीं गिरा, किसका है। आज अगर मस्जिद में किसी इंसान का पर्स गिर जाए ना, जोहर में गिरे असर में आएगा तो नहीं मिलेगा। मस्जिद जैसी जगह पे चोरियां हो जाती हैं आजकल के जमाने में, ऐसा दौर है आजकल का। तो लोगों को हमारे असलाफ से सीखना चाहिए कि उनका किरदार क्या था। तो हज़रत अली ने सोचा कि यार तय तो उसकी अमानत लौटाते हैं जिसने मुझको ऊंट बेचा था, ये 100 दिरहम जिसकी अमानत है उसे लौटाते हैं। हज़रत अली दोपहर से ढूंढते रहे, शाम हो गई, हज़रत अली को वो शख्स न मिला, पूरा शहर छान मारा, हज़रत अली ने वो शख्स न मिला। शाम को मायूस होकर जब लौटे ना, क्या देखते हैं कि आकाए करीम भी जलवा अफरोज हैं, आकाए करीम के ही पास सैयदा फातिमा ज़हरा भी जलवा अफरोज हैं। जैसे इतना देखा ना कि आकाए करीम भी जलवा फरमाए, उनके पास उनकी लख्त जगह सैयदा फातिमा ज़हरा भी है जो 3 दिन से भूखी हैं। जैसे इतना मंजर देखा ना, हज़रत अली की आंखें नीचे झुक गई। हज़रत अली आकाए करीम के बारगाह में तशरीफ लेकर आए, जैसे ही कुछ बोलना चाह रहे थे हज़रत अली कि उनके साथ क्या क्या वाक़या पेश आया, कुछ बोलना चाह ही रहे थे, उससे बोलने से पहले आकाए करीम बोलने लगे। आकाए करीम फरमाते हैं ए अली तुम ये सोच रहे हो ना कि वो शख्स कौन था जिसने तुम्हें ऊंट बेचा?
फिर तुम ये भी सोच रहे हो कि यार जिसने मुझसे ऊँट खरीदा, मैं ऊँट खरीदा ही था, खरीद कर कुछ कदम आगे निकला, फिर मुझे ऊँट बेचने वाला भी मिल गया। मतलब पहले तो किसी ने मुझे ऊँट बेचा, फिर मैं आगे गया, फिर ऊँट खरीदने वाला भी मिल गया। इतना जल्दी जल्दी ये सब कैसे हो गया? सुबह से मैं दोपहर तक ढूंढता रहा, कोई काम ना मिला, कहीं से पैसों का इंतजाम ना हुआ, इतना जल्द क्या ऐसा क्या हो गया जो मेरे साथ पैसों का इंतजाम हो गया? तो आका करीम ने पूछा था, अली तुम इसी फिक्र में होना कि तुम्हारे पास इन पैसों का इंतजाम कहाँ से हो गया है? तो मौला अली ने ताज्जुब की निगाह से आका करीम की तरफ देखा और देख करके कहा था, या रसूलल्लाह आपको कैसे मालूम कि मेरे साथ ये सब वाकया पेश आया है? आका करीम फरमाते, अली अभी अभी जिब्रील आए थे, फरिश्तों के सरदार सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन आए थे, आकर के वो बता करके गए कि ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। तो अली ने कहा था कि या रसूलल्लाह फिर ये भी बता दीजिए कि ये सब कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये तो आपको मालूम है, ये बता दीजिए कैसे हुआ, मैं इस फिक्र में डूबा हुआ, कैसे हुआ ये सब? आका करीम फरमाते हैं, ए अली मैं तुम्हें बताता हूँ, रात के वक्त जब मेरी बेटी फातिमा नफे नमाज पढ़ते हुए गिरी थी ना, जब मेरी बेटी फातिमा मुसल्ले पर गिरी, जब गिरी तो देखने वाला कोई ना था, देखने वाला दुनिया का कोई ना था, लेकिन उस रब ने जो खालिक अर्ज़ो समा है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो परवरदिगार आलम है, उसने फातिमा को देख लिया था गिरते हुए। यानी जब रब ने देखा ना कि फातिमा गिर गई, फातिमा के गिरने के बाद उसके जुबान से, मेरी बेटी फातिमा की जुबान से कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं निकला जिस लफ्ज से इंसान को तकलीफ होती है, कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं निकला, बल्कि मेरी बेटी फातिमा जब गिरी ना तो उसकी जुबान से तस्बीहात बुलंद हुई, और वो तस्बीहात बुलंद होने के सदक़े में रब ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीर को हुक्म दिया और हजरत मीकाइल को हुक्म दिया कि लोगों जाओ जाकर के मौला अली की मदद करोगे उनके रिस्क में, मौला अली की मदद करो उनके रिस्क में, ताकि कहीं से उनके पास पैसों का इंतजाम हो जाए, ताकि वो अपने घर खाने का सामान ले जा सके, ताकि वो अपने घर में खाने का इंतजाम कर सके। जैसे ही इतना हुक्म हुआ ना रब का, हजरत आका गरीब फरमाते हैं, जब तुम लौट करके आ रहे थे ना, वो शख्स जिसने तुम्हें ऊंट बेचा था वो कोई और नहीं बल्कि सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन थे। रब ने उनको भेजा था कि ए लोग, मतलब ए जिब्रील अमीन जाओ जाकर के मेरे अली की मदद कराओ। फिर उसके बाद अली जिसने तुमसे वो ऊंट खरीदा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो फरिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने पर मुकर्रर किया है, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम। हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते जिसको अल्लाह ताला ने पानी बरसाने और रोजी देने पर मुकर्रर किया है। तो अली वो कोई और नहीं बल्कि मीकाइल थे जिन्होंने तुमसे वो ऊंट खरीदा। आका करीम फरमाते हैं, अली जो 10 दिरहम है ना, ये भी तुम्हारा है, और रब की तरफ से ये जो 100 दिरहम है वो भी तुम्हारा ही है। ये तुम्हारे इस अंदाज के सदके में, मेरी बेटी फातिमा के सदके में रब ने तुम्हें ये रिज़्क़ अता फरमाया है। तो ये अंदाज हुआ करता था हमारे असलाफ का, और इस तरीके से बेशुमार वाक़यात से तारीख के औराक भरे पड़े हुए हैं कि हम जब उन औराक को पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा कि हमारे असलाफ की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने किस अंदाज से अपनी जिंदगियां गुजारी। आज घर में अगर देखा जाए तो शौहर बीवी के दरमियान में तरह तरह के मुआमलात पेश आते रहते हैं, लेकिन लोगों को गौर करना चाहिए कि हमारे असलाफ ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। अगर उनके जिंदगी गुजारने के तरीके से अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो कभी भी जो बुराइयां हैं वो इस समाज में तशरीफ नहीं लाएंगी, आएंगी ही नहीं वो बुराइयां। क्यों? क्योंकि ये तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।